ترکمانستان میں وقت اور تہذیبوں کا باہمی تعلق امن و ترقی کی بنیاد پر ہونے والے بین الاقوامی فورم میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت۔ کانفرنس ہال آمد پر ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف نے صدر آصف علی زرداری کا خیر مقدم کیا۔ بین الاقوامی فورم میں روس اور ایران ثقافتوں کے مابین افہام و تفہیم امن و کے فروغ کے لیے فرم کا انعقاد خوشان۔ خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ کرنا ہوگی۔ بہتر علاقائی روابط سے ثقافتی اور اقتصادی تعاون شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ دو طرفہ تعاون کے معاہدے نئی پیش رفت $2 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سعودی وزیر کی قیادت میں وفد کا پاکستان کا دورہ اہمیت کا حامل۔ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے۔ IMF پروگرام کے لیے سعودی عرب، چین اور UAE کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اور سعودی عرب ترقی اور خوشحالی کے شراکت دار، دوستی مضبوط سے مضبوط تر۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے مابین معاشی تعلقات اہم سنگ میل ہیں۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عزیز الفالح سے گفتگو۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں مسلح افراد کا کوئلے کی کانوں پر حملہ، 20 افراد جاں بحق، 7 زخمی کانکنوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دکی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس، FC اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے علاقے دکی میں کانکنوں پر حملے کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ محمد شہباز شریف کا حملے میں قیمتی جانی نقصان پر دکھ اور رنج کا اظہار۔ جاں بحق کانکنوں کے بلندی درجات کے لیے دعا۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم۔ قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گیلانی کی دکی بلوچستان میں کانکنوں پر حملے کی پرزور مذمت۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا حملہ آوروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی دکی میں بے گناہ مزدوروں کے قتل کی مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دکی میں کول مائنز میں کانکنوں پر مسلح افراد کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ المناک واقعے میں ملوث شرپسند عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ بے گناہ مزدوروں کو قتل کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میڈیا کال منظر عام پر خارجی طارق محمود کی PTM جرگے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار۔ کال پر پشتون کارڈ کے ذریعے غیور پشتونوں کو ورغلانے کی سازش۔ کالعدم PTM معصومیت کا ڈرامہ رچا کر پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ PTI محض ایک پروپیگنڈا پارٹی ہے جس کے لیے اس جماعت نے باقاعدہ گروپ بنا رکھے ہیں۔ ایک بندے کے نام پر جعلی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں۔ ان کے کارندے اداروں کو دھمکاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔
इंटर बैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता 277 रुपए और 53 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 277 रुपए की काविशें। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी के रुझान में इजाफा। सरमाकारी के लिए 100 से ज्यादा मंसूबे तैयार करने का फैसला। मंसूबों पर बैनुल-अक़वामी फर्म एटी केर्नी मिडल ईस्ट लिमिटेड का काम जारी। एजेंडे पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। ड्रेप को आला मयार की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। साइलिन की शिकायत का बरवक्त इज़ाला किया जाए। अद्वियात की बिला तअत्तुल के लिए हुकूमत का एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन जारी। स्मगलिंग किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बड़ा खतरा है। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 13,000 से ज्यादा मैट्रिक टन खाद, 3,613 मैट्रिक टन आटा, 35,128 मैट्रिक टन चीनी और 17.119 मिलियन लीटर नाफिज हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद। दफा 144 के नफाज का मकसद शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास को महफूज बनाना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलेक्शन में भारतीय कठपुतलियां बेनकाब। आर्टिकल 370 से मुतालिक कठपुतली उमर अब्दुल्ला के बयानात में वाज़ेह तज़ाद। कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस लाने के वादे से दस्तबरदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नाम नेहाद रहनुमा भारतीय हुकूमत की आला-ए-कार। अवाम उमर अब्दुल्ला जैसे खुद गर्ज सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके। इलेक्शन एक ढोंग था और अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर बमबारी से 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। इसराइल की लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज के हेडक्वार्टर्स पर भी टैंकों से गोलाबारी। सेहोनी फौज के गजा पर भी हमले, 63 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का ईरान पर मुमकिना हमला रोकने के लिए सफारती कोशिशें जारी। आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कौम की बेटियों को पैगाम है, आगे बढ़ें। हम जनूबी अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर भट्ट की शानदार कारकर्दगी, 3 तिलाई और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। नूह भट्ट ने 120 किलोग्राम की ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। कौमी वेट लिफ्टर ने स्क्वाट और बेंच प्रेस कैटेगरीज में भी सोने के तमगे हासिल किए। नूह भट्ट ने ओपन कैटेगरी में मजमूई तौर पर 860 किलोग्राम वजन उठाकर टाइटल अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 जापान की लगातार तीसरी कामयाबी। सऊदी अरब को 2 गोल से हरा दिया। जनूबी कोरिया की उर्दन के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। और चीन में शंघाई मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट, वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्काराज को अपसेट शिकस्त का सामना। क्वार्टर फाइनल्स में जमहूरिया चेक के टॉमिश महाश ने हरा दिया। आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर की सेमीफाइनल में रसाई। सिनर ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को स्ट्रेट सेट्स में मात दी।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, इन खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और मुदब्बिराना क़यादत में पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकलकर मुआशी शराकतदारी के सफर पर गामजन। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। अहलन व सालन मरहबा। The Special Investment Facilitation Council, SIFC, that all matters of red tape will indeed be replaced with a red carpet treatment for Saudi investment. इस दौरे से न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, बल्कि SIFC के तहत सरमायाकारी के लिए बनाए गए साजगार माहौल की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआशी शराकतदारी के नए दौर का आगाज होगा, जिससे नए बिजनेस आइडियाज और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। बिरादराना ताल्लुकात की मंजिल, शराकतदारी, जिद्दत और खुशहाली। वेलकम बैक। तफसीली खबरों के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खत्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि बेहतर इलाकाई राबितों से मुल्कों के दरमियान सकाफती और इक्तसादी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। तुर्कमानिस्तान में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि अशख़ाबाद में मुनक़िदा फ़ोरम में मेरी शिरकत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म की अक्कासी करता है। तफसील बताएंगे आका मसूद खालिद। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में होने वाला बैनुल अक़वामी फोरम तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गुली फरागी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से हुआ। वक्त और तहजीबों का बाहमी ताल्लुक, अमन व तरक्की की बुनियाद के मौजू पर होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। फोरम से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक तुर्कमानिस्तान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका अकीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन पर मबनी हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक्तसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। We need to focus on promoting connectivity among regional countries and would help strengthen culture and economic operations. I would like to specially commend the President of Turkmenistan for organizing this event, providing an opportunity to interact with leadership of the regional countries that will help strengthen our bonds of friendship. सदर मुमलिकत ने तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर को खिराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि मखदूम गुली फरागी न सिर्फ एक शायर बल्कि तुर्कमान लोगों के जज्बे, उमंगों और हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। Makhdoom Guli is only one poet but a symbol of Turkmen people's spirit, aspiration and love for their homeland. Let us take this opportunity to reaffirm the commitments to our values he cherished and the work together to create a brighter and peaceful future for the generations to come. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फोरम के इनकाद से खित्ते के मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यकीन है कि फोरम खित्ते के ममालिक के दरमियान सकाफती ताउन की नई राहें हमवार करेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुख्तलिफ शोबों में 27 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द का पाकिस्तान का दौरा अहमियत का हामिल है। मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे इसके अक्कास हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द का पाकिस्तान का दौरा अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब की अरबों डॉलर की सरमायाकारी से दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। The total value of these
agreements and MOUs amount to about $2.2 billion in various sectors of industry, agriculture, information technology, education, and mines and minerals, Karobar, electricity, and lots of other very important areas of mutual cooperation. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। We are committed to implement these agreements and to transform these memorandum of understandings into agreements in time to come. We will have his fullest support and cooperation to promote bilateral investment and business opportunities. I can assure you, my dear brother, Excellency, on my behalf, on behalf of my government, and of course, the Chief of Army Staff, General Asim Munir, that we will live up to your expectations. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, चीन और UAE के मशकूर हैं। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सेमीकंडक्टर्स की तैयारी, टेक्सटाइल के शोबे, तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम के शोबे, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक और हुनरमंद अफरादी कुव्वत बढ़ाने समेत 27 मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वफ़द का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा और मुश्तरका इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात है जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वज़ीर का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से एक अहम संगी मील है जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी तर ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पाकिस्तान में सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करने में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों के दरमियान बातचीत ने नई सरमायाकारी की राह हमवार की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की जो पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में इनकी शानदार खिदमत का एतराफ़ है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। वफाकी काबीना ने 5 IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदे खत्म करने की मंजूरी दे दी है। कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के मामलात को बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। दीगर IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी और टैरिफ में कमी की जाएगी। तफसील आका मसूद खालिद से। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि अवाम की मुश्किलात का अजाला किया जाए। बिजली सार्फिन पर IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ कम करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। IPPs मुआहिदों को खत्म करने का आगाज कर दिया है जिससे अवाम और कौमी खजाने को बड़ा रिलीफ हासिल होगा। इन IPPs के जो साबका जो वाजिबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। इससे बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुंचेगा। नतीजे में कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सफर अभी बाकी है जिसे तेजी से तय करना है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सहमाही की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। हमारी जो क्वार्टरली रेमिटेंसेस हैं इट्स अबाउट $8.8 बिलियन जो कि बज़ात खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है। अजीम पाकिस्तानी जो बाहर रिज़्क़ हलाल की जो कमाई है वो
پاکستان بھیجتے ہیں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کو گزشتہ 7 ماہ کے دوران جو مشکلات درپیش آئیں ان کا حوصلے اور دانش مندی سے مقابلہ کیا۔ صبر و استقامت کے ساتھ معاشی چیلنجز کا سامنا کرنے پر عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماضی میں کوئی سنگ دل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی کا سے میرا کوئی سروکار نہیں، یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے۔ مہنگائی پچھلے سال اس ماہ 32% تھی، آج وہ 6.7% پر آ چکی ہے۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس بارے میں مجھے بار بار تلقین کی اور کہا کہ شہباز شریف بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پوری کوشش کرو۔ پریزیڈنٹ زرداری بھی اس بارے میں مجھے فرماتے رہے، بلاول بھٹو صاحب مجھے مشورے دیتے رہے، تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 7 ماہ کی شبانہ روز محنت اور اجتماعی کاوشوں سے مہنگائی کی شرح کم کرنے اور معاشی اصلاحات کا سال 2025 کا ہدف رواں سال ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اپنے قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسٹوڈنٹس کے لیے تو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے، یہ کریکولم کا حصہ ہے، اور جن اسٹوڈنٹس نے اس پہ کام کیا ہے انہوں نے اپنی ماشاءاللہ مہارت دکھائی ہے اور سوسائٹی کے مختلف اینگلز کو انہوں نے بڑے اچھی طرح اجاگر کیا ہے اور بڑے اچھے کوالٹی کے ساتھ۔ نارمل ہمارا خیال نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچی جو ہے یونیورسٹی کی، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے چلو میچور ہو جاتے ہیں صادقین کی طرح یا دوسروں کی طرح، ان سے توقع کر سکتے ہیں، لیکن دیٹ اٹس بیسیکلی یو کین سے اسٹارٹ آف لائف۔ یونیورسٹی لائف جو ہوتا ہے کالج کے بعد اسٹارٹ آف لائف ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا کے کاموں سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، انشاءاللہ آئیں گے ادھر پھر بھی اور آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور جو بھی یونیورسٹی کے دوسرے مسائل ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم پرائرٹی بنیاد پہ اٹھائیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہماری واحد وومن یونیورسٹی ہے اس کو ہم اس لیول پہ پہنچائیں تاکہ باہر کے لوگ ہماری طرف سوچیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے لاہور نہیں جائیں یا اسلام آباد نہیں جائیں یا کراچی نہیں جائیں، وہ اسٹوڈنٹس آ کر کے باہر والے ادھر آ جائیں۔ اس کی انشاءاللہ گریڈنگ بھی وہاں تک ہماری کوشش ہوگی کہ پہنچائیں، اور یہاں آپ لوگوں کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اس کو مستقل ایک ذریعہ دیں گے۔ میں یہ جو بھی انہوں نے اسٹوڈنٹس پینٹنگ کی ہے اپنے طرف سے ذاتی 10-10 ہزار روپے سب کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ 23 سے 27 سے جتنے بھی ہیں وہ میں اپنے طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں، اور یونیورسٹی یہ انتظامیہ بھی کھڑی ہے، اور آپ کے ان کو کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ان کی کوئی پلانز اور پروگرام وہ بنا کر کے لیں۔ منسٹر صاحبہ بھی یہ بیٹھی ہوئے ہیں، میں بھی ادھر ہوں، انشاءاللہ آپ کو ہم اس پہ حوصلہ افزائی کریں گے۔ نہ ایک تو صرف یہ پینٹنگز ہیں اور یہ آئٹمز ہیں، اس کے ماں سوائے یونیورسٹی کی دوسرے جو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی آپ کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا ہم گریڈنگ اوپر سے اوپر لے جاتے جائیں۔ ٹارگیٹ تو میں نے ان کو ادھر بلوچستان یونیورسٹیز کو سب کو دیا ہوا ہے کہ گریڈ آپ نے 80 تک پہنچانا ہے، کیونکہ پہلے ہماری یونیورسٹی خواتین کی تعلیم معاشرے کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ یونیورسٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ بھی یہاں کی یونیورسٹیز کا رخ کریں۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل تقریب سے خطاب کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کی۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں مسلح افراد کے کوئلے کی کانوں پر حملے میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دکی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس، ایف سی اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ افسوسناک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कानकनों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जाम कानकनों के बुलंदी दराजात के लिए दुआ और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहत याबी की दुआ और उन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी ने दुक्की में कानकनों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। बेगुनाह कानकनों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार भी किया गया। कायम मकाम सदर ने कहा कि मजदूरों पर बेईमाना हमले करने वालों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। इस जालिमाना वाक़े में मुलव्विस अनासर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कायम मकाम सदर ममलिकत ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने जाँ बहक कानकनों की मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुक्की में कानकनों पर मुसल्लह अफराद के हमले की शदीद मज़म्मत की है। अपने ताज़ियती बयान में उन्होंने कहा कि जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अलमनाक वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर सियासी शख्सियात ने मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी कानकनों पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए सोगवार खानदानों से ताज़ियत की है। अपने एक बयान में मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों के लिए सब्र जमील और मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़ख्मी कानकनों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और मीर जाफ़र खान मंदुखिल ने भी दुक्की में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने वाक़े पर इज़हार बरहमी करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। इन शरपसंद अनासिर को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफ़र खान मंदुखिल ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि अपने घर से दूर हिलाल रोज़ी कमाने में मसरूफ़ इन मेहनत कशों पर हमले का कोई जवाज़ नहीं बनता। गवर्नर बलोचिस्तान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दिया कि कत्ल के वाक़े में मुलव्विस अनासर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, 25 और 26 अगस्त की शब बलूचिस्तान के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े में मुजफ्फरगढ़ के वाजिद शहजाद भी लुक़्मा अजल बने, जो रोज़ी की खातिर बलूचिस्तान गए हुए थे। शहीद के लवाहिकीन ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। वाजिद शहीद ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸੀ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ इंतहा कहनी। अब तो बुढ़ा हुआ तो मेरी कमर भी टूट गई है, खत्म हो गया। दहशतगर्द जड़े ने ना इंसान नहीं है, हैवान है, मुसलमान भी नहीं, काफिर नहीं। अस तो बहुत गरीब लोग हैं, साढ़े इंसाफ होना चाहिए। हम वाजिद शहीद की अम्मी हूँ। हमारा वही एक ही कफील था, बेटा जो कमाने गया था, बच्चों की रोजी करने गया था, जालिमों ने बेदर्दी से मार दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 3 बच्चे हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं। नौजवान था मेरा बेटा। बहुत हमें फील होता है, हम उनके बगैर नहीं रह सकते, हम हर वक्त रोते रहते हैं। जो महारंग बलोच है ना, वो उसने तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाई। जो हमारा बच्चा था वो मारा गया, वो भी तो इंसान था ना, वो भी तो किसी माँ का बेटा था। ना कोई डर ना लिया, ना कोई कुछ आवाज़ उठाई। उनको सजा दें, उनके लिए बाहर आ जाते हैं, और जो बेगुनाह मारे जाते हैं उनका नाम नहीं लेते। मेरे बच्चों को वाहिद ही सहारा थे, रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए गए हुए थे, जिन्हें दहशतगर्दों ने बेदर्दी से उन्हें कत्ल कर दिया। मेरी हुकूमत से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, तो मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। बलूचिस्तान से चंद दिन पहले वापस आ रहे थे अंगूर लोड करके घर, रास्ते में दहशतगर्दों ने रोक उन्हें शहीद कर दिया था। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। तो एक मज़दूर अपनी मज़दूरी कर रहा था, उनका इनसे क्या लेना देना।
اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا. اس کی چھوٹی چھوٹی 4 بچی ہیں. کرنے والا وہی خود ہی تھا، کفیل تھا، ہمارے گھر کا بڑا تھا، سربراہ تھا. یہ لوگ انسان اور مسلمان کہلانے کے قابل تو نہیں ہیں، یہ حیوان ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے. نارنگ بلوچ دھرنے دیے ہوتے کہ ہمارے لاپتہ ہو گئے، ہمیں انصاف چاہیے. اب نارنگ بلوچ کدھر گئی ہیں؟ ہم بھی تو بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نا، مکسی بلوچ ہے ہماری ذات. ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ دہشت گردوں کو اس ملک سے ختم کیا جائے، انہیں نیست و نابود کیا جائے. جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اور کسی گھرانے کے ساتھ نہ ہو. جو ہم رو رہے ہیں اور کوئی نہ روئے، کسی کے بچے یتیم نہ ہو. تو یہ واقعہ ہوا ہے بہت ہی دردناک ہے، جس سے پورا علاقہ سوگوار ہے اور یہ دکھ ہمارے لیے بہت ہی عزیزناک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، جو بھی سہولت کار ہیں جو ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. دشمن ایجنسیوں کی فنڈنگ اور حمایت سے وجود میں آنے والی فتنہ الخارج اور پی ٹی ایم کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا. خارجی طارق محمود عرف ابو حشام اور پی ٹی ایم کارندے کی خفیہ کال منظر عام پر آ گئی. دوران کال خارجی طارق محمود عرف ابو حشام کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے والی سائٹ پر جرگہ ہو رہا ہے، میرا بہت ارمان ہے کہ میں اس میں شرکت کر سکتا. میں اپنے پختون بھائیوں کو بتاتا کہ ہتھیار، سیاست اور دھرنے سارے ایک کریں، سارے ایک ہو جائیں، اور چاہے وہ عسکری ہوں، غیر عسکری یا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے طالبان. خارجی طارق محمود نے کہا کہ پنجابی اور دوسرے قوموں کو اپنے علاقے سے نکال دیں اور اپنے علاقوں کو اپنا بنائیں. دفاعی ماہرین نے خفیہ کال پر تجزیے میں کہا کہ یہ کال پشتون کارڈ کے ذریعے غیور پشتونوں کو برگلانے کی سازش ہے. خارجی طارق محمود کا دھرنے میں شرکت کے لیے بےتاب ہونا فتنہ الخوارج اور پی ٹی ایم کے گٹھ جوڑ کی واضح دلیل ہے. خفیہ کال میں لسانیت اور قومیت کو بھڑکانے اور غیر پشتونوں کے خلاف اتحاد پر زور دیا گیا. یہ کال پشتون قبائل میں عسکری اور غیر عسکری قوتوں کو یکجا ہو کر ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ترغیب ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کالعدم پی ٹی ایم معصومیت کا ڈرامہ رچا کر پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتی ہے. پی ٹی ایم اور فتنہ الخوارج ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا. اسلام آباد میں ٹیکنالوجی کمپنی SLB کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی جیسی اختراعات سامنے آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی تمام شعبوں کی کارکردگی میں اضافے کا باعث ہے. وقت کے ساتھ چلتے ہوئے چیزوں کو سمجھنا اور سیکھنا ہوگا. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پروپیگنڈا پارٹی ہے جس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے باقاعدہ گروپ بنائے ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے قوانین اور ضوابط تیار کرنا ہوں گے تاکہ اداروں اور شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا کے منفی استعمال اور تضحیک کو روکا جا سکے. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا صارفین اداروں کو دھمکاتے ہیں. ایک شخص کے نام پر کئی جعلی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سماجی میڈیا کو قواعد و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے. گورنمنٹ کالج آف نرسنگ ایبٹ آباد کے طلباء اور طالبات نے سہولیات کی عدم دستیابی پر شدید احتجاج کیا اور خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. ان کا کہنا تھا کہ کالج میں فیکلٹی کی کمی بڑا مسئلہ ہے. 400 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے صرف 10 فیکلٹی ممبر ہیں جو تمام مضامین پڑھاتے ہیں. احتجاج میں شریک طلباء و طالبات نے کہا کہ کالج کی حالت انتہائی خراب ہے جہاں لیبارٹری، لائبریری اور ٹوائلٹس تک کی سہولت موجود نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات فوری طور پر پورے نہ کیے گئے تو احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. حکومت پنجاب نے آج سے 17 اکتوبر تک راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کرتی ہے. اس کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کو محفوظ بنانا ہے. اس دوران راولپنڈی میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، ڈبل سواری، فائرنگ، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی. دفعہ 144 کے تحت کبوتر بازی، ڈرون اڑانے اور لیزر لائٹس کے استعمال پر بھی پابندی عائد ہوگی. یہ فیصلہ ضلعی انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا جس کا مقصد امن و امان کے قیام اور انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ یقینی بنانا ہے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر مختار احمد بھرت کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں. ریگولیٹری نظام کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کرنا وقت کی ضرورت ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے دورے کے موقع پر خطاب میں ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ ڈریپ کو اعلیٰ معیار کی ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے رجسٹریشن، لائسنسنگ، انسپیکشن کے عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ اہلیت اور شفافیت کے فروغ دینے کے لیے تمام تر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی.
स्टूडेंट तहरीक जंग ने आईनी अदालतों के क़याम और आईनी तरमीम के हक़ में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आईनी तरमीम का नफाज फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। शुरका ने मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती को फ़रोग़ देने का मुतालबा किया है। शुरका ने आईनी अदालतों के क़याम और आईनी तरमीम की हिमायत में नारे लगाए। शुरका का कहना था कि आईनी तरमीम और आईनी अदालतों का क़याम रोशन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आईनी तरमीम से मुल्क की बेहतरी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पानी की तरसील और तकसीम से मुतालिक मंसूबे की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वजारत इक्तिसादी उमूर की जानिब से सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज और ऑस्ट्रेलियाई सेंटर बराए ज़रई तहकीक की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव वेंडी अम्बरगर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पानी के इस मंसूबे के लिए 3 मिलियन ऑस्ट्रेलवी डॉलर देगा। ये मंसूबा ज़राई शोबे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मंसूबे से मौसमियाती मुनासबत और मुवाफ़क़त के लिहाज से पानी की तकसीम मुमकिन हो सकेगी। ये मंसूबा साल 2029 तक मुकम्मल हो सकेगा। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये और 79 पैसे पर बंद हुआ था। आज डॉलर 277 रुपये और 53 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने सरमायाकारी के लिए 100 से ज़ायद मंसूबे तैयार करने का फैसला कर लिया है। इन मंसूबों पर एक बैनुल-अक़वामी फर्म AT केर्नी मिडल ईस्ट लिमिटेड काम कर रही है। सेक्रेटरी SIFC ने जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत पाकिस्तान के माशी आउटलुक, मौक़े और चैलेंजेस के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि SIFC कारोबार में दुश्वारियों को दूर करने के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर कायम की गई है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने के लिए तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए SIFC स्टेट बैंक के इश्तराक से काम कर रही है। तवानाई के शोबे में मुख्तलिफ ट्रांसमिशन लाइन्स और ग्रीन एनर्जी के मंसूबे भी सरमायाकारी के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान और जर्मनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी ताआवुन को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। SIFC की सहूलतकारी के बायस अमल में लाई गई पॉलिसियों और साजगार कारोबारी माहौल के बायस पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का रुझान बढ़ा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालिया इलेक्शन का ड्रामा बेनकाब, आर्टिकल 370 के हवाले से कठपुतली उमर अब्दुल्ला के बयानात में वाज़ेह तज़ाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला इलेक्शन जीतने के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस लाने के वादे से दस्तबरदार। इलेक्शन के हवाले से उमर अब्दुल्ला की पार्टी का मंशूर आर्टिकल 370 की बहाली था, मगर अब वो अपने इस वादे से रूगरदा हैं। इलेक्शन कैंपेन में उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने कश्मीरियों को मोदी सरकार के जुल्म सितम और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों की याद दहानी करवाई। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला और इनकी पार्टी के तमाम वादे धरे के धरे रह गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानात के मुताबिक आर्टिकल 370 की बहाली की तवक्को रखना बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ नहीं। हम कश्मीरी अवाम पे ये वाजे कर देना चाहते हैं कि हम अब आर्टिकल 370 की बहाली पर मजीद काम नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में हुकूमत बनाने के बाद हम BJP के साथ मिलकर कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। हमें भारतीय वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर उमेद शाह के विजन कश्मीर पर भरोसा रखना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के इलेक्शन से कबल और बाद के बयानात में वाज़ेह तज़ाद इस बात का सबूत है कि हालिया कश्मीर इलेक्शन महज एक ड्रामा था। कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 77 बरस से उमर अब्दुल्ला जैसी कठपुतलियों के धोखे का शिकार रहे हैं। उधर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की ताज़ा बमबारी से 22 अफराद शहीद जबकि 117 जख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने 2 मकामात पर जनूबी लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया है। इस दौरान झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी जख्मी हुए। इसराइल के शहर करियात शमूना में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने मुसलसल तीसरे रोज़ इसराइली शहर हेफा पर रॉकेट फायर किए हैं। शिमाली इसराइल के शहर कदीरा में चाकू के हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशगाबाद में आज ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सदर ईरानी हम मनसब से मुलाकात के लिए अशगाबाद पहुंच चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन अमन और तरक्की के लिए आलमी फोरम में भी शिरकत करेंगे, जबकि तुर्कमानिस्तान के सदर से भी उनकी मुलाकात होगी। आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर कहा कि बच्चियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, सही नशोनुमा, तालीम और सेहत का ख्याल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लाम और आईन पाकिस्तान ख़ातीन को मुसावी हुकूक फराहम करता है। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए तमाम शोबाए ज़िंदगी में ख़ातीन की शिरकत को यकीनी बना रहे हैं। सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि बच्चियों को बेहतरीन तालीम और तरबियत से आरास्ता करना आने वाली नस्लों की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बच्चियों का
आलमी दिन उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, दरपेश मुश्किलात को उजागर और हल करने के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि बेटियों के ख्वाबों और सलाहियतों को परवान चढ़ाना उनका हक़ ही नहीं, कौमी फ़र्ज़ भी है। हमारी बेटियाँ, बहनें और बच्चियाँ कौम का मुस्तक़बिल हैं। बच्चियों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कौम की बेटियों के लिए ई-बाइक, वर्चुअल पुलिस स्टेशन, पिंक बटन, पिंक गेम्स और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए हैं। पंजाब की बेटियों को महफूज माहौल, मयारी तालीम और माली खुद मुख्तारी फराहम करने का सफ़र जारी है। पंजाब हुकूमत बच्चियों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन रोड मैप पर अमल पैरा है। मरियम नवाज शरीफ ने कौम की बेटियों को पैगाम देते हुए कहा कि आपकी हिम्मत, अज़्म और काबिलियत दुनिया को बदल सकती है। आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी हिदायत पर पंजाब असम्बली की इमारत को गुलाबी रोशनियों से सजा दिया गया है। इस इक़दाम का मकसद लड़कियों की अहमियत को उजागर करना और उनके हुकूक, तालीम और मुसावी मौक़े की फराहमी की ज़रूरत पर जोर देना है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बच्चियों का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि बच्चियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इससे मुतालिक आवाम में शऊर व आगाही उजागर करने के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। मर्दो जन जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, मगर खवातीन की अहमियत भी कौमों की तरक्की और अरूज में तस्लीम शुदा है। बच्चियों के आलमी दिन का ऐलान पहली बार 1995 में बीजिंग में खवातीन से मुतल्लिक एक आलमी कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसका मकसद बच्चियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, उनकी बेहतर नशोनुमा और उन्हें आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम करने के साथ साथ इनको दरपेश चैलेंजेस का खात्मा है। ये दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि बच्चियां भी उतनी ही अहमियत रखती हैं, उनकी भी उसी तरह डिग्निटी और रिस्पेक्ट है जिस तरह लड़कों की होती है, जिस तरह बच्चों की होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए तालीम, साइंस और सकाफ़त यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र वाली 3 करोड़ 10 लाख बच्चियां स्कूल नहीं जाती। बच्चियों को इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद, कम उम्री की शादी और माशरती तवाफुत जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिनका खात्मा करके ही मुआशरे में इनके किरदार को फाल किया जा सकता है। अपनी बच्चियों को एजुकेट करें, एम्पावर करें, उनको एम्पावरमेंट की भी बहुत ज़रूरत है ताकि वो खुद मुख्तार बन सके। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के हवाले से सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं। ताहम इस सिलसिले में मजीद बेहतरी माशरती रवैयों में मुस्बत तब्दीली से ही मुमकिन है। बच्चियों की सलाहियतों को उजागर करना और उनके मसाइल के हल के लिए बहुत से इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए तारीखी पैकेज के तहत लोधरा की तीनों तहसीलों में हिम्मत कार्ड की तकसीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब तक जिला भर के 300 के करीब अफराद में ये कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। जिला लोधरा की तीनों तहसीलों में हिम्मत कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। जिला भर में अब तक 300 के करीब मुस्तहिक अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इस इनकलाबी इक़दाम से कार्ड होल्डर हर 3 माह बाद 10,500 रुपये की रकम वसूल कर सकेंगे। जो लिस्टें आ रही हैं, हम उनके मुताबिक माजूर अफराद को कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। बैंक की तरफ से बैंक के अफराद मौजूद हैं, उनकी तरफ से उनको बिठाकर 10,500 रुपये हम मौके पर दे रहे हैं। 1,500 रुपया साको मिलता पे ये सारे सफेद पोसा वास्ते, मजदूरों वास्ते ये बहु इमदाद है, बहु ये साको बड़ा आसरा थी वेंदे। असां भीख मंगण तो बच वेने हैं। असां वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करें कि उन 10,500 रुपया देने पर सारा कोई खर्चा मर्जा 2 महीने का 2 महीने 3 महीने का जो खर्चा बन वैसे सा। माली इमदाद से स्पेशल अफराद और बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। हिम्मत कार्ड स्पेशल पर्सन के लिए हौसला अफजाई का बायस बनेगा। हिम्मत कार्ड से स्पेशल अफराद छोटा कारोबार करके अपना रोजगार कमा सकेंगे। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی انتھک محنت اور مدبرانہ قیادت میں پاکستان عالمی تنہائی سے نکل کر معاشی شراکت داری کے سفر پر گامزن سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد اہلاً و سہلاً مرحبا The Special Investment Facilitation Council SIFC that all matters of red tape will indeed be replaced with a red carpet treatment for Saudi investment. اس دورے سے نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے بلکہ SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے لیے بنائے گئے سازگار ماحول کی بدولت مختلف شعبوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین معاشی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہوگا جس سے نئے بزنس آئیڈیاز اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی برادرانہ تعلقات کی منزل شراکت داری جدت اور خوشحالی ویلکم بیک ناظرین ماحولیاتی آلودگی اور سیلاب کے نقصانات کم کرنے میں دریائی جنگلات بہت فائدہ مند ہوتے ہیں سکھر میں دریائے سندھ کے کنارے مصنوعی جنگلات کے لیے شجرکاری مہم جاری ہے رپورٹ کر رہے ہیں ملک عمران شاہد دریائے سندھ میں ضلع سکھر کے مختلف علاقوں میں محکمہ جنگلات کی 1,90,000 ایکڑ سے زائد اراضی موجود ہے ہر سال سیلابی صورتحال کے بعد محکمہ جنگلات کی جانب سے زیادہ اراضی پر جنگلات بنانے کے لیے مختلف درختوں کے بیج بوئے جاتے ہیں مسلسل اس مہم کے باعث ایک بہت بڑے رقبے پر مختلف درخت لگے ہوئے ہیں
जो माहौलियात की बेहतरी के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल में नुकसानात को भी कम करते हैं। महकमा जंगलात सखर डिवीजन के पास जो 1,90,000 तकरीबन जमीन है। अब उसमें से तकरीबन 60% एरिया पे जो है वो जंगल मौजूद है। हर साल हम उसमें जो है ब्लैंक एरिया पे रीजनरेशन एक्टिविटीज करते हैं। तो इस साल भी हमने 8,500 एकड़ से ज़्यादा एरिया पे हमने की है। तो दरिया को बचाने के लिए हमने बाकायदा यहाँ पे हर साल जैसे फ्लड आती है, क्योंकि हमारी जो दरख्तों की सस्टेंस होती है वो दरिया के पानी पे होती है, तो हर साल जब फ्लड आती है तो फ्लड जब रिसीड करता है तो हम यहाँ पे तकरीबन कोई 8 से 10,000 एकड़ की एरिया पे जो है बबुल और जो कंडी है उसकी चटाई करते हैं। इस सीजन में शजरकारी मुहिम के नतीजे में काश्त किए जाने वाले बीजों से नन्हे पौधे फूट रहे हैं। दरियाई जंगलात के बाद जहां माहौलियाती आलूदगी में कमी हो रही है, वहीं मुख्तलिफ जानवरों को कुदरती माहौल मैसर आ रहा है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। दरियाई जंगलात माहौलियाती आलूदगी को कम करने के साथ साथ सैलाब की तबाहकारियों को कम करने में भी खासे मुआविन साबित होते हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सखर। खबर आवे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम हुर रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले छोड़ की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसबेला, कराची और तुर्बत में 40 जबकि सांगड़ में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की सूरत हाल, और अब आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल।